Today I'm just going to give you the summary of the chapter, The Enemy. When हम लोग कहते हैं enemy, means in a simple word दुश्मन. Yes. अब क्वेश्चन आता है कि how do we assess someone as our enemy? And what if that enemy is in need? So, what should be our way to treat them? It is very obvious that everyone will tell the one answer कि मैम अगर वो enemy है तो हमें उसे immediately उसको उसके साथ में वैसा ही करना चाहिए. We should behave in the same manner as. ठीक है. When it comes to the personal enmity, to some extent we can do it. Personally, I don't even believe in that. I'm not saying that I believe in karma. No. I believe that we should handle someone to the extent we are able to, otherwise leave it. But if it comes to the country, then secondly, कोई भी प्रोफेशन होता है, कोई भी, whatever, a doctor, the first oath a doctor takes is that he or she would be treating the patient irrespective of his caste, creed, language, gender. That is his first and utmost oath. That's why we say that medical profession is a noble profession. Doctors, teachers, we cannot develop enmity with our people. For us, everyone is equal. कितनी बार हमारे साथ होता है, अभी कम टू नो, मतलब हमारे साथ बहुत सारे होता है, दैट पर्टिकुलर पर्सन हैड बैक बाइटेड यू, हैड मतलब कि बैक बाइट यू. ठीक है, इट्स ओके. मुझे ऐसा लगता है कि टिल इफ दैट पर्सन हैज कम टू मी फॉर समथिंग, आई शुड हेल्प हिम और हर टू दैट एक्सटेंट, बिकॉज आई एम अ टीचर. कई बार मुझे लोग बोलते हैं मैम आप बोलते हो, पीछे वो ऐसा बोलते हैं. I say let them speak up. If they speak something wrong about me, it is their perception. I'm not going to, अपने जो माउथ है उसको तो मैं नहीं कर सकती हूँ. For me, everyone is a teacher. Yes, we need to learn some basic knows भी हमें सीखना चाहिए, मैं ये नहीं बोलती हूँ. But of course, teaching noble, medicine उससे भी noble. एक डॉक्टर अगर हमसे ये सोचकर कि तुम्हारे साथ मेरी दुश्मनी है या यू बिलोंग टू योर माय एनिमी कंट्री, आई एम गोइंग टू किल यू, आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू, व्हाट विल हैपन? एंड दैट इज वेयर दिस चैप्टर स्टार्ट्स. आपके बैक में क्वेश्चन, मतलब कि द मेन थीम इज गिवन, वन नीड्स टू stand above his narrow prejudice. हमें अपने जो हमारी जो नैरो सोच होती है उससे ऊपर उठना चाहिए. We need to. This is because if we think on a narrow ground, अगर हम नैरो ग्राउंड में सोचते हैं, this person is my enemy, that nation is mine, we would never be humans. We all are first humans and then whatever profession, whatever country we belong. तो पहले हम जो हैं humans हैं, and humanity stands above all other virtues. बाकी सब चीज़ों से बड़ा होता है आपका humanity. Now the next इससे related आ जाता है, does everyone understand that?
Does everyone understand that? No. It's not possible that everyone might think on the same ground as we think. मैं सोच सकती हूँ, कोई और सोच सकता है, आप सोच सकते हो, but may not be the other person isn't able to see your perspective. This chapter, The Enemy, is about a doctor. And this chapter is written in the backdrop of war. मतलब कि लड़ाई के दौरान लिखी गई है. अब नेचुरल है कि when a country is undergoing war, उस वक्त में जो भी आपका एनिमी कंट्री है, हम उसको कभी भी गलत, हम कहीं कभी भी उसको जो है सही तरीके से नहीं देख सकते हैं. एंड दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज रिटन, this particular chapter is written against two enemy countries, that is Japan and America. Even till date, America and Japan जो है, that is they are not friends. They aren't enemies either, but of course they don't have that cordial relations that the friends should have. So now this chapter is about a doctor, Dr. Hoki Sadao, a Japanese doctor. But जब आपके मतलब earlier period में अगर हम देखते हैं तो Japan did not have this much of medical facilities, and that is why the doctors, means the surgeons, used to go to other countries like France, UK or US to acquire the knowledge. And Japanese का एक मतलब अभी भी है, that's a, you can say that it is their beauty, you can say that they are very stern. वो अपने जो ट्रेडिशंस होते हैं ना, उनको वो कभी नहीं तोड़ते, बिल्कुल नहीं तोड़ते हैं. they are very strict to their, they adhere to their traditions till date. now होकी सदाओ जब छोटे थे तो जो उसके उनके जो फादर थे, he was sure that he should become a surgeon, but at the same time he should always instill the values of being a Japanese. अपने जो जापान की जो कल्चर है, अपने जो वैल्यूज है, अपने जो मतलब कि रूट है, उसको उसने कभी भी जो है, इट शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड. उनका जो घर था फादर ने बनाया हुआ था नियर द बीच, and later when he was grown up he was sent to US. अमेरिका भेजा गया इनको. अमेरिका में while he was taking his course, वहाँ पर जो कोर्स सिस्टम होता है वो थोड़ा अलग होता है. so while he was taking, तो in one of his professor's house he met a girl called Hana, Hana, Hana. Though she was also a Japanese, they both developed feelings for each other, yet they both were not in a hurry to get married. That is because Dr. Sadao wanted to be sure that his father जो है, he gives the consent for this marriage. And later on they both got married. They had 2 children and were living a very happy family. Now comes the present. In the present, the father was dead. Father की death हो चुकी थी. Dr. Sadao, his wife, 2 children, some of their old servants जो कि उनके father के time से थे, the gardener, the cook, then उनकी maid Yumi, they all were there in the home. Dr. Sadao was working for the military. जापान की जो मिलिट्री है उसके लिए वो काम करते थे. He was a doctor in the military.
and as a doctor actually he was supposed to go with the troops. मतलब उनको जो है ट्रूप्स के साथ जाना चाहिए था, मतलब इन दी फॉर द वॉर टू ट्रीट द सोल्जर्स, but he was not sent along with the troops. This question has often come in the paper. Why? The reason was, first, Dr. Sadao was discovering a special medicine which could render the wounds clean. मतलब कि जो बुलेट वुंड्स होते हैं उनको वो क्लीनली साफ करके उसको विदाउट स्कार. सेकेंडली ही वॉज ऑल्सो मॉनिटरिंग द जनरल, मतलब जो उसके हेड थे उसको वो मॉनिटर कर रहे थे, हु वॉज इल, उसको कुछ बीमारी थी. And he did not allow Dr. Sadao to go with the troops. So these were the two reasons for which he was not sent along with the troops. So he was staying back. अब ये सारी चीज़ें जो हैं, डॉक्टर सदाव वॉज स्टैंडिंग ऑन हिज, मतलब कि वो अपने घर के बाहर खड़ा था near the balcony and he was just thinking about all these past and present moments. उनकी जो वाइफ थी, she also came and she also came there and she also joined him. Now both of them were standing there. Suddenly उनको ऐसा लगा कि जो वहाँ समुद्र है, मतलब their house was near the coastal area, तो उनको ऐसा लगा कि there was someone who has been knocked by the waves. जो पानी का जो वेव था उसके साथ शायद कोई वहां पर आके मतलब कि गिरा है. They wanted to see, पहले तो उन्होंने सोचा वहां पर normally most of the time the fishermen, those who used to go to the nearby island, वहाँ पे एक island था, वहाँ पर बड़े सारे fishermen थे, so they normally would be coming over there and they would be knocked by the waves. थोड़ी देर के लिए वो वहाँ रुकते थे, उसके बाद वो लोग उठ के चले जाते थे. तो उनको लगा कि मे बी दैट इज ऑल्सो वन पार्ट ऑफ, बट जब बहुत देर तक कोई भी नहीं उठा तो दे वेंट देयर टू सी कि कौन है वो. दे वर अलार्म्ड क्योंकि उनके घर के पास था. सो दे बोथ वेंट देयर. उन्होंने जो है वहां जाकर उस आदमी को देखा. द मैन वॉज लाइंग ऑन हिज बैक, उल्टा लेटा हुआ था. ही वॉज ग्रोनिंग, मतलब वो करहा रहा था. एंड ब्लड वॉज वूजिंग फ्रॉम हिज नियर इंटेस्टाइन, आपकी किडनी के पास से खून निकल रहा था. नाउ डॉक्टर सदाव टच्ड एंड ही फेल्ट इट वॉज अ फ्रेश ब्लड. उन्होंने अंदाजा लगाया कि मे बी ही वॉज नॉक्ड बाय द वेव्स एंड किसी रॉक से टकराया और खून निकल रहा है. जब उनको सीधा किया गया तो उसका जो कैप था that was lying and it was written on that US Navy. And his blonde hair, मतलब उसके बाल जो थे वो गोल्डन कलर के थे. तो they understood that he is actually an American soldier and perhaps शायद ये prisoner है. हमारे बार बार हम लोग POW बोलेंगे instead of prisoner of war. तो maybe he is prisoner एंड भागा होगा, पीछे से गोली लगी होगी एंड एट दैट टाइम मे बी ही वॉज, मतलब कि वो पानी में गिर गया होगा. ही माइट हैव बीन नॉक्ड बाय द रॉक्स. उसको खून आ रहा है. नाउ द क्वेश्चन वॉज वेदर टू व्हाट टू डू विद हिम. डॉक्टर सदाव को लगा कि ही शुड बी टेकन टू द वाटर और उसको उठा के फेंक देना चाहिए बिकॉज ही वॉज एनिमी. ही वॉज फ्रॉम द एनिमी कंट्री. Why should it be saved? बट दोनों जो है पानी में फेंकने की सोच तो रहे थे लेकिन किया किसी ने भी कुछ नहीं. And he was groaning, blood was oozing. As a doctor, he wasn't able to take that decision. He was in a fix, he was in a dilemma. मैं क्या करूं? एक तरफ पेट्रियोटिज्म, एनिमी, दूसरी तरफ
Doctor, profession, duty. Should he hear to the consigns or should he hear to his mind? किस चीज को सुने? Then he made the decision that he should go for saving that man. अब उनको ये था कि जो सोल्जर्स हैं उन्हें क्या कहा जाए, what to be told to the soldiers, soldiers कह रही, to the servants. Then they said कि चलो हैंडल किया जाएगा. Both of them took that POW and to their room. उन्होंने डिसाइड किया, since he is wounded and in profession a doctor cannot leave a wounded person to die, तो he would be taken, उसका जो wound है उसको ठीक कर दिया जाएगा and उसके बाद he would be given to the police. He would be handed over to the police. This was their decision. Both of them took this decision. Right? Now, they took it. Unfortunately, ironically, whatever you say, unfortunately or ironically, you can say that उनको उसे उसी रूम में ले जाना पड़ा जहां पर एक समय डॉक्टर सदाव के फादर जो है वो रहते थे. हाना जो है शी वॉज मोर वरीड बिकॉज उसके जो बेडशीट्स थे वो भी गलत होते, एंड दैट वॉज नॉट अ बेडरूम दैट वी ऑल हैव अ बेड. इन जापान दे नॉर्मली डोंट हैव द बेड, दे नीचे मतलब कि दे बिछाते हैं. So she was also seeing that कि पूरा घर बाहर मिट्टी से आया था, तो the entire house was soiled, मिट्टी थी, पानी आ रहा था, तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था. Yet as a dutiful wife, एक ड्यूटी बाउंड वाइफ की तरह उसने अपनी हस्बैंड का साथ दिया. He took him, फिर उसने टच करके देखा that there was a bullet और उसको निकालना पड़ेगा. Now the next question was he needed an emergency surgery. How to do? Dr. Sadao ने हाना को कहा that he needs a surgery and we have to treat him. Then leaving the doctor, that man with Hana, डॉक्टर सदाव जो है सर्वेंट से बात करने के लिए चले गए, उनको समझाने के लिए, क्योंकि इट वॉज टू रिस्की फॉर देम टू कीप दैट POW विदाउट द कंसेंट ऑफ द सर्वेंट्स. अगर बाहर पता लगेगा तो डॉक्टर सदाव में बी पनिश्ड, ही माइट बी जेल्ड फॉर दिस ऑफेंस. टू हार्बर एन एनिमी, एक एनिमी को शेल्टर देने के जुल्म में ही वुड बी इवन put behind the bars. और इसीलिए he wanted to convince the servants also. So therefore he went to talk to the servant. उधर डॉक्टर सदाओ सर्वेंट से बात कर रहे हैं, इधर हाना उस POW के साथ है. She calls her maid Yumi, जो उसके बच्चों की केयर करती है, and she tells Yumi to clean that man, उस आदमी को क्लीन करो. नाउ डॉक्टर सदाओ जो है वो तो वहां गए हुए हैं, इसीलिए जैसे ही यूमी उसको देखती है तो शी मेक्स, अपने जो आईब्रोज होते हैं, शी मेक्स अ फ्राउनिंग फेस एंड शी सेज दैट दिस मैन इज टू डर्टी. पहले तो ये आदमी बहुत ही गंदा है, सेकेंडली ही इज आवर एनिमी, मतलब ही इज एन अमेरिकन, सो आई एम नॉट गोइंग टू वॉश हिम, मैं इसको साफ नहीं करूंगी. हाना को गुस्सा आ जाता है, तो वो कहती है कि दिस इज द ऑर्डर ऑफ योर मास्टर, ये तुम्हारे मास्टर का ऑर्डर है. तो कहती है आई विल नॉट. तो कहती ठीक है तुम जाओ, तुम अपने काम से काम रखो, तुम चली जाओ यहां से. इन अ वे शी सेज दैट यू कैन लीव. यूमी जो है वो चली जाती. डॉक्टर हाना जो है वो अपने आप ही उस इंसान को साफ करती है, दो शी इज वेरी स्केयर्ड बट येट उसको साफ करती. नाउ उधर डॉक्टर सदाओ गोज टू टॉक टू द सर्वेंट्स, उनको वो बताते हैं अपनी बात को
नाउ ही इज अ डॉक्टर, उनका अपना एक लेवल है. द सर्वेंट्स आर servants. Now they cannot understand the temperament of the doctor. उन्हें ऐसा लगता है that the doctor has become very arrogant. Since he was in America, वो अमेरिका में पढ़ता था, इसीलिए शायद he has developed soft feelings for the Americans. Americans के लिए उनके दिल में जगह बन गई है. Maybe he is very confident about his skills. उसमें घमंड आ गया है. He has forgotten the values of his father. So they are not convinced. वो उनको कुछ बोलते नहीं है, but they are not convinced. जब हाना बाहर जाती है तो सर्वेंट्स जानबूझकर जोर जोर से बोलते हैं that Dr. Sadao has become, मतलब कि he is full of pride. जब मदर नेचर उसको नहीं बचाना चाहती, once he was shot with a bullet and second time he was knocked down by a rock. So then why the doctor is trying to save him? Why he is trying to become a god? और वो ऐसा बोलकर अपनी जो मतलब की जो डिसप्लेजर है वो उसको बताते हैं. नाउ हाना जब अंदर आती है तो वो डॉक्टर को बताती है दैट यूमी जो है शी हैज रिफ्यूज्ड. तो वो देखता है कि ही इज क्लीन, तो वो कहता है कि तो तुमने क्लीन किया? वो कहती है यस. वो कहता है चलो कोई बात नहीं. ही डजंट पे मच अटेंशन अबाउट ऑल दीज राइट नाउ. हिज एंटायर, उसका जो एंटायर कॉन्सेंट्रेशन इज अबाउट हाउ टू save that man who was groaning, who was profusely bleeding. So he doesn't say anything. Now he wanted to perform the surgery. Someone has to give the anesthesia. So he asked Hana to give the anesthesia. Now Hana is not a doctor. Now she doesn't understand how to do. But doctor उसको समझाता है कि just क्लोरोफॉर्म लो एंड गिव हिम इट इन हिज नोज. और जब वो ही विल बी ब्रीदिंग, मतलब कि जोर जोर से ब्रीथ करेगा हेवीली, यू कैन पुट टेक इट ऑफ. स्मेल से उसको शी स्टार्ट्स प्यूकिंग और वो भागती है गार्डन की तरफ. लेकिन डॉक्टर कुछ नहीं बोलते हैं. विद द हेल्प ऑफ हाना ही कंप्लीट्स दैट फर्स्ट प्रोसीजर. देन हाना बाहर आ जाती है. डॉक्टर जो है बहुत आराम से उसका ऑपरेशन कर रहा होता है. While operating, the doctor has the habit of calling his patients as my dear friend. ये उसकी आदत है. It's not with deliberately with one or other, वो उसकी आदत थी. So when the man was groaning, पहले तो उसको गुस्सा आ रहा होता है और बाद में जब उसको गुस्सा मतलब कि उसको आ रहा होता है, लेकिन as a doctor when he starts treating तो वो बिल्कुल मतलब कि एनग्रॉस हो जाता है. एंड वाइल द मैन वॉज ग्रोनिंग ही सेज नथिंग, मतलब कि डोंट फ्रेट माई डियर, ऐसे करता. और इसमें ना बोर्ड पे आपका देर वॉज अ क्वेश्चन ऑन दिस दैट वॉज ही रियली फ्रेंडली विद द मैन और इट वॉज जस्ट आउट ऑफ हिज habit. And it was only his habit. He had not derelicted his duties. उसने अपनी ड्यूटी से कोई गद्दारी नहीं की थी. इट वॉज जस्ट आउट ऑफ हिज हैबिट द वे ही यूज टू ट्रीट हिज अदर पेशेंट्स. अब उसने जो है वेरी केयरफुली ही टुक आउट दैट बुलेट. ही गेव द एड, उसने लगाया एड, पट्टी वट्टी लगाई, उसको लगाया. एंड so in this manner the man was treated and he was taken back to the room and he was given the sleep. Now nobody wanted to come near that POW. उस prisoner of war के पास कोई नहीं आना चाहता था. So it was a duty of doctor as well as his wife who has to look after the chap. हाना जो थी she took the responsibility of nursing him, feeding him, and doctor जो थे वो आकर उसको देखभाल करना चाहते थे. Here after one day, on that night, Yumi said that she wanted to leave the job. She did not want to live with a family who was treating an enemy.
Yumi is the maid servant. She was looking after their children. उनके बच्चों की आया थी Yumi. The third one. Now Yumi जो है evening को आई and she said that she would not like to continue. But अगर बच्चे उसको याद करते हैं तो she can Hana can call her. हाना भी उसे बहुत प्यार से बात करती है एंड शी गोस. नाउ घर के अंदर हाना, डॉक्टर सदाव, उनके जो छोटे बच्चे एंड उनके जो 3 पुराने जो नौकर हैं, दोज हु यूज्ड टू वर्क सिंस देयर फादर्स टाइम वर देयर. डेली इट वाज डॉक्टर हु वुड लुक एंड जो हाना थी शी वुड ट्राई टू नर्स. अब नेक्स्ट डे it is not Humi, it is Yumi. Why Yumi? Yumi? Because she did not want to live with a family who were harboring an enemy. एक enemy को treat करने वाले के साथ वो नहीं रहना चाहती थी. Now अगले दिन जब सुबह हुई तो उसको होश आ गया. तो इसने जाकर पूछा, How are you feeling? That man was surprised. उसने कहा इंग्लिश. तो हाना ने बताया कि she was staying in US for some time, तो she knew him. उसके बाद उसने अपना, जब डॉक्टर आए तो डॉक्टर ने उसे बहुत स्ट्रिक्टली कहा, डो नॉट स्पीक टू मी इवन इफ आई आस्क यू. मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है. बट दैट मैन वॉज कंप्लीटली इनडेप्टेड टू द कपल. वो तो इन दोनों के लिए एहसानमंद था जिन्होंने इसकी जान बचाई थी. नॉट ओनली फ्रॉम द वेव्स बट ऑल्सो उसको ट्रीट किया. सो ही वॉज फुल ऑफ इन डेप्थ. वो तो पूरा एहसान था उसमें. ही वॉन्टेड टू थैंक. ही वॉज फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड. लेकिन मिस्टर जो डॉक्टर थे, ही डिड नॉट टॉक टू हिम. He wanted to maintain that relationship that you are an enemy, I am an enemy. I am a doctor, you are a patient, so I have treated you. बस इतना ही. हाना उसको देखती थी तो देखती थी कि उसके ना गले में there used to be marks, the marks of torture. And हाना सोचा करती थी that उनके यहाँ पर एक और, मतलब कि there was one more general. तो वो बताता था कि, मतलब लोग बताते थे कि he was, मतलब कि he would behave abusively with his wife. उसकी वाइफ जो है डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार थी. तो उसको लगता था कि अगर वो जो जनरल है वो अपनी वाइफ को इतना मार सकता है तो क्या इसको भी मार पिटी होगी. मतलब शी वॉज स्पिटिंग दैट मैन जिसके पूरे गले वगैरह में चोट के निशान थे. उसे लग रहा था कि सोल्जर्स के साथ कितना बुरा होता है. Yet as a respectful professional relationship, both of them nursed him. उसको नर्स करती थी. 1-2 दिन बाद वो जो लड़का था, he even started walking. और डॉक्टर सदाव ने उसको डांट लगाई. उसने कहा, डू यू वॉन्ट टू डाई? अभी तुम्हारा जो है वूंड अभी ठीक नहीं हुआ है, सो यू हैव टू लाई डाउन. He was nursed well, he was given the medicines, food etc. and he was recovering. अब ऐसा जो है it was for 7 days. 7 days ऐसा ही चलता रहा. On 7th day 2 things happened. This was also a question in the board only. 7th day 2 चीजें हुई एक साथ. सुबह जब हाना उठी तो उसने देखा दैट द सर्वेंट्स हैड नॉट डन एनी कोर. घर का कोई काम नहीं किया था, सब घर फैला हुआ पड़ा था. शी अंडरस्टूड दैट द सर्वेंट्स वर ऑन स्ट्राइक. दे वांटेड टू लीव द जॉब. हाना ने कुछ भी नहीं किया. उनका जो सैलरी जो भी देना था, सेटल करना था, दे दिया. दे ऑल वेंट. सुबह. सेकेंड दोपहर को Dr. Sadao was reading his newspaper in the garden. Suddenly the doorbell rang. जब डोरबेल बजा तो हाना ने दरवाजा खोला. There was a man in uniform.
हाना उसको देखकर पूरी तरीके से बौखला गई. She panicked. She was panting breathlessly. She went running. She went to Dr. Sadao and she said that a police has come. उसे लगा the police has perhaps come to arrest her husband, क्योंकि सर्वेंट्स ने जाकर बाहर बता दिया होगा. जब डॉक्टर सदाओ गए तो पता लगा he was a messenger from the general side. जनरल ने भेजा था, जनरल की तबीयत खराब हो गई थी तो उसने बुला भेजा था. डॉक्टर सदाओ जनरल के उसके साथ चले गए, लेकिन उन्होंने मन ही मन में ठान लिया that he would tell this truth to the general and hand over this man to him. उसने जाकर जो है जनरल को बताया. अब जनरल की तबीयत काफी खराब थी, उसने इसकी बात सुनी. अब उसको डर था कि अगर मैं इस वक्त में इफ आई अरेस्ट हिम देन उसकी अपनी जो, बिकॉज ही डिड नॉट हैव बिलीफ ऑन एनी अदर डॉक्टर, ही हैड ट्रस्ट ऑन डॉक्टर सदाओ, तो ही डिड नॉट वांट टू टेक एनी चांस. तो उसने कहा कि इट इज ओके, तुमने एज अ डॉक्टर यू हैव डन योर ड्यूटी, नाउ आई विल मैनेज दिस इश्यू. अगर तुम कहो तो आई सेंड माई प्राइवेट असासिन्स, मैं अपने जो प्राइवेट असासिन्स हैं, मतलब असासिन्स मतलब जो दूसरों को मारते हैं, गुंडे, द वन हु किल्स अदर्स, मैं उन्हें भेज दूंगा रात को. जस्ट ओपन द डोर बाय गार्डन साइड, दे विल कम, दे विल किल हिम विदाउट एनी नॉइज, एंड अगर तुम कहो तो इसकी बॉडी भी पानी में डाल देंगे. डॉक्टर सदाओ वॉज वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज उसका काम है बचाना. सिंस ही वॉज अ डॉक्टर, he did not want to come into this controversy, and he was happy that the governor, without knowing to others, without telling to others, was ready to help him. मान गया. रात को बड़ा खुश उसने दरवाजा जो है खोल के रखा. he thought that the general will send. रात को कुछ आवाजें भी आ रही थी, उसे लगा that the assassins have come. उसे सिर्फ इसी बात का डर था कि कहीं हाना ना उठ जाए, उनको ना देख के चीखना ना शुरू कर दे. सुबह वो उठा, वो ही वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज उसको 100% श्योर था दैट द assassins must have assassinated him. But when he reached the room, the POW was healthy and hale. He was hale and healthy, smiling and welcoming him. अब डॉक्टर को जो है उसको भी डर लग रहा था बिकॉज ऑल द सर्वेंट्स हैड ऑलरेडी लेफ्ट द हाउस, एंड और अब ये चलने फिरने भी लग गया था, सो ही कुड बी, किसी की भी नजर में आ सकता था. तो ही वाज बिट. फिर उसने सोचा कि एक आज की रात और देख लेता हूं. दैट नाइट ऑल्सो वेंट बट नो assassins केम. द अदर डे जनरल की तबीयत बहुत बिगड़ गई. General had to undergo a surgery in emergency. Now doctors only one hope, जो उसका एक hope था, that is the general, वो भी अब जो है he was also unconscious. He was also feeling and moreover he could not see Hana in pain, क्योंकि हाना एक एक मिनट डरी हुई थी. और पहले जब सर्वेंट्स थे तो उनका यही कहना था कि चलो डॉक्टर तो अपनी बात कर रहा है, बट व्हाट अबाउट द चिल्ड्रन, उनके बच्चों को जो है गद्दार का बेटा बोला जाएगा, दे वुड बी कॉल्ड एज अ ट्रेटर. तो उसे डर लग रहा था वो सारी बातें सोचकर. नाउ ही वॉज नॉट एबल टू डिसिफर व्हाट टू डू. एक तरफ द मैन वॉज हेल एंड हेल्दी, ऑन द अदर हैंड जनरल वॉज इन कॉमा, मतलब अनकॉन्शियस. सो ही हैड नो अदर वे. Therefore, he devised another solution. And solution ये था that he would help the POW to escape from here. Because as a doctor, he did not have the guts to kill him. वो एक डॉक्टर था.
he did not have the guts to kill him. उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे मार डाले. At the same time, it was very risky to keep him in the house now. And handing over to the police was no way. वो तो उसको भी पकड़ेंगे. Therefore, he decided that he should help him to escape. उसने जो है एक बोट का इंतज़ाम किया. He just arranged for a boat with some food items, some fish chips, then एक टॉर्च, और उसने जो है अपना ब्लैक किमोना जो वो लोग पहनते हैं जापानीज, वो निकाला एंड उसको दिया. ही गेव इट टू दैट मैन और उसे कहा दैट यू एस्केप फ्रॉम हियर. जब शाम होने को आई तो उसने जो है वो बोट लेकर आया. बोट अरेंज कर रखा था. उसने कुछ जो ज़रूरी सामान था वो अरेंज कर दिया था. एंड ही सेड दैट यू कैन एस्केप फ्रॉम हियर. उसने अपनी ड्रेस दे दी अपना. एंड ही सेड नियर बाय तुम्हें जो है कोरियन आइलैंड्स मिल जाएंगे. इफ़ यू गो ओवर देयर, वहाँ अमेरिकन शिप्स आते रहते हैं, तो यू कैन एस्केप फ्रॉम देयर. बट जब तक आपका जो है यू आर नॉट गेटिंग एनी अदर मोड, यू हैव टू हाइड योर सेल्फ. डू नॉट फायर, मतलब आग मत लगाना. इफ़ यू आर फीलिंग हंग्री देन यू हैव टू ईट द रॉ फिश. बट देर इज़ नो अदर वे, बिकॉज अगर तुम आग वाग लगाओगे तो तुम पकड़े जाओगी. एंड इन द ट्वाइलाइट, मतलब शाम का जब ऐसा टाइम होता है, इफ़ यू रिक्वायर समथिंग यू कैन जस्ट टॉर्च मी, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट. ये कहकर उसने एक और बार उस इंसान की जान बचा ली. नाउ द प्रिजनर वॉज नॉट एट ऑल इन अ मूड टू लीव देयर होम. उसको इतना अच्छा रिसेप्शन कहीं पर भी नहीं मिल सकता था. The couple had saved their life, and again he was trying to save him. But उसको भी पता था that it was not possible to live here for long. Therefore, he agreed. He was very grateful to this man, and he went away. Now the next day, मतलब next day, ये बात हाना को भी नहीं पता था. उसको यही पता था कि वो भाग गया. The next day, जब जनरल को होश आया तो उसने कहा आई एम सो सॉरी, आई हैड टोल्ड यू दैट आई विल बी सेंडिंग माई असासिन्स, बट सिंस आई वॉज इन पेन तो आई रियली कम्प्लीटली फॉरगॉट. मैं अपने प्री ऑक्यूपेशन में भूल गया, विच वॉज ऑफकोर्स सेल्फिश बिहेवियर, बट येट उसने बोला. तो अब डॉक्टर सदाओ को पता था कि मैं जो भी बोलूँगा that would be accepted by the general, because it was a fault of the general that in despite his, उसने जब अपना मतलब कि अपने आप को बताने के बावजूद भी he had not taken any action. Despite his confession he had not taken any action. तो अब सदाओ जो जनरल है he is going to help me out. Therefore उसने बोल दिया, वो तो भाग गया. The general had no other way rather than to believe him. उसने कहा ठीक है, it's okay. अगर वो भाग गया है तो we cannot do anything because you have done your duty. But now he has run away. In fact, you have served the, तुमने जो है serve किया है, and I want to reward you for your performance. I want to reward you. डॉक्टर सदाव जो है चला गया. उसने कहा तुम इवनिंग आना. डॉक्टर सदाव अपने घर गया एंड ही वॉज थिंकिंग ऑन द ग्राउंड कि जब वो अमेरिका में था, व्हेन डॉक्टर सदाव वॉज इन अमेरिका, एट दैट टाइम ही वॉज ऑल्सो इल. ही हैड फॉलन इल. वो बीमार हो गया था. तो जो उसकी अमेरिकन लेडी थी, दो शी नर्स्ड हिम, उसने इसकी देखभाल की, लेकिन उसका कहना था कि उसने इसीलिए देखभाल की थी बिकॉज शी डिड नॉट वांट द फॉरेनर टू डाई इन देयर कंट्री.
वो यहाँ आकर ये लोग यहाँ मर जाएं वो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसने क्या था, नॉट आउट ऑफ लव, नॉट आउट ऑफ sympathy, not out of any duty, but because they did not want the foreigners to die in their country. तो उसको लगा कि if the Americans thought on that superior ground, अगर वो supersede करते हैं हमें, then why did I leave that man? Why did I not able to kill him? What happened that, what was that my conscience did not allow me to kill him? But the answer is, a doctor is a doctor. He or she can treat a person. They cannot kill. Yes, Dr. Sadao did not want the man to be alive also, since he was from the enemy country. But as a doctor, उसके सामने एक इंसान बीमार था तो वो उसे देखना भी नहीं चाहता था मरते हुए. So he treated him. But at the same time, as a patriotic person, as a Japanese, he also did not want to harbor any enemy. So that is why he had saved that man. उसने तो इसलिए सेव किया था क्योंकि उसे तो लगा था कि वो बाद में उसको हैंड ओवर कर देगा. सिचुएशन ऐसा हो गया कि वो हैंड ओवर नहीं कर पाया था और उसको जो सोल्यूशन सही लगा उस वक्त टू हेल्प दैट मैन टू एस्केप, वो उसने कर दिया. बिकॉज किलिंग वॉज नॉट हिज वर्क, और कोई रास्ता नहीं था क्योंकि ऑलरेडी द सर्वेंट्स वर आउट. नाउ थिंग्स बिकेम नॉर्मल इन हिज हाउस. सर्वेंट्स भी वापस आ गए, सब कुछ ठीक हो गया. नोबडी केम टू नो, इन नोबडी हैड डप्टेड हिम. शाम को वो खड़ा हुआ था, मे बी उसे लगा कि वो सोल्जर जो POW जो है वो इसको सिग्नल ना दे, बट देयर वॉज नो सिग्नल, मीन्स नो टॉर्च एंड ऑल. तो इसको डॉक्टर को लगा कि मुझे जो रिवॉर्ड मिलना था वो मुझे ऑलरेडी मिल गया. द रिवॉर्ड वॉज नॉट द रिवॉर्ड दैट the general was supposed to give to him. The reward was that the man had escaped safely and now nobody would question him. So that is the chapter, The Enemy.